हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स। वी विल डिस्कस वन बाय वन। So in first method, we will discuss about the preparation of alcohols by hydrolysis of alkyl halides. Hydrolysis of alkyl halide हम अलग अलग वे से कर सकते हैं। We can use aqueous alkalis like NaOH or KOH. So when alkyl halide having formula Rx, when treated with aqueous NaOH, this Na and this X part goes out and we will get ROH. Thus NaX part goes out. ठीक है. For example, if we consider an example of CH3CH2Br, that is ethyl bromide and NaOH aqueous. So what happens? This Na and this Br will go out and we will get CH3CH2OH and the byproduct is NaBr. That is we get ethyl alcohol. Another example we can take, that is CH3Cl and NaOH की जगह पे अगर हम KOH ले लेते हैं aqueous, then this Cl and this K will goes out and we will get CH3OH and the byproduct is KBr. In another way, we can use moist silver oxide in place of aqueous alkali. So moist silver oxide in solution actually behaves like silver hydroxide. We can study this by using equation. Suppose we consider Ag2O, that is silver oxide. Moist का मीनिंग क्या होता है? Moist का मीनिंग होता है moisture. Moisture means होता है water. ठीक है, H2O. तो इन दोनों की रिएक्शन होकर क्या बनेगा? We will get HeOH. चलो रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर 2 टाइम्स, राइट हैंड साइड में सिल्वर 1 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन बिकम्स 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 and 1 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 into हाइड्रोजन दैट इज 2 टाइम्स. ठीक है. सो moist silver oxide is actually silver hydroxide. So when alkyl halide is treated with moist silver oxide, that is silver hydroxide, what happens? This X and this Ag part goes out and we will get ROH, that is alcohol, and AgX part goes out. For example, we can take an example of again CH3CH2Br, that is ethyl bromide, when treated with AgOH, that is moist silver oxide. What happens? This AgBr goes out and what happens? CH3CH2OH and we will get ethyl alcohol and the byproduct of AgBr. ठीक है. The another method is by acid catalyzed hydration of alkenes. तो जब हम अल्किन्स का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा? अल्किन का सबसे पहले स्टेप में कन्वर्शन होगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट में, which on further hydrolysis gives corresponding alcohol. What is mean by hydration? Hydration means होता है addition of water, and in this case, alkenes when undergo hydration, the water molecule is being added according to Markovnich's rule. So therefore, this method is very useful for the preparation of secondary and tertiary alcohols. The only primary alcohol which can be prepared by this method is ethyl alcohol. So let us take an general example. Suppose this is an example of alkene, RCH double bond CH2. This is an alkene. So when sulfuric acid is treated with it, write sulfuric acid in another way, HSO4H, that is H2SO4, sulfuric acid it is. ठीक है. अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, that is delta positive, and the remaining part will be delta negative. ठीक है. So what happens? This hydrogen will go to the carbon atom having more number of hydrogen atoms, and this negative part will go to the carbon atom having less number of hydrogen atoms. So this will go here and this will go here. So what happens? We will get alkyl hydrogen sulfate, CH को मिल जाएगा SO4H वाला पार्ट और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और इसको एक हाइड्रोजन मिला तो ये बन गया CH3.
ठीक है, सो दिस इज अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जब सेकंड स्टेप पे इसमें हाइड्रोलिसिस होगा, दैट इज HOH हम इसमें ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला बॉन्ड वापस से ब्रेक करेंगे। हमने देखा था SO4H वाले पार्ट के ऊपर क्या चार्ज था, निगेटिव चार्ज, तो SO4H वाले पार्ट को देंगे हम निगेटिव चार्ज और रिमेनिंग जो ऊपर वाला बचेगा वो रहेगा पॉजिटिव पार्ट। अगेन पॉजिटिव को निगेटिव मिलेगा, निगेटिव को पॉजिटिव, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हाट हैपेंस, दिस आर CH को ये पॉजिटिव पार्ट होने की वजह से इसको निगेटिव पार्ट मिलेगा, दैट इज OH मिलेगा। ठीक है, और ये CH3 था इधर एज इट इज रहेगा, प्लस SO4H एंड दिस H विल फॉर्म H2SO4। So we can say that in first step H2SO4 is being added and in second step H2SO4 is being removed or eliminated. Therefore H2SO4 behaves as a catalyst. If we consider the whole example, we will see that only H2 molecule is being added in this alkene according to Marconi's rule. And we know that what is meant by Marconi's rule. Marconi's rule का एक common statement है that when an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of reagent will go to that double bonded carbon atom having less number of hydrogen atoms, and that will be the major product of reaction. So in overall we can conclude that this is an alkene. इसमें हमको करना कुछ नहीं, इसमें हमको बस वाटर ऐड करना है। ऊपर वाली रिएक्शन को हम समराइज कर सकते हैं इस वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज एसिड कैटालाइज। एसिड को हम H+ साइन से इंडिकेट करते हैं, तो एसिड के प्रेजेंस में वाटर इस अल्कीन में ऐड हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनीज रूल, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्कोनीज रूल। ये पार्ट हो जाएगा निगेटिव, ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। Negative part of reagent will go to that double bonded carbon atom having less number of hydrogen atom. तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें से इसके पास कम हाइड्रोजन, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास बस एक ही हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन है। So negative part will go to that double bonded carbon atom having less number of hydrogen atom, and positive part will go to that carbon atom having more number of hydrogen atom. So we have R CH OH single bond CH3. So this is alcohol. In this case, it looks like it is a secondary alcohol. So this method is very useful for the preparation of secondary and tertiary alcohols. Let us consider an example. CH3 CH double bond CH2. What is this? It is prop-1-ene. ठीक है, जब इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी H2SO4 it is, ठीक है, ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो हमें मिलेगा इस तरह से कंपाउंड CH3 CHSO4H एंड CH3। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको करना है हाइड्रोलिसिस। निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, व्हाट हैपेंस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला। ठीक है, तो इस कार्बन को मिलेगा निगेटिव पार्ट और इस SO4H को मिलेगा पॉजिटिव पार्ट। सो वी विल गेट CH3 CHOH CH3 प्लस SO4H एंड दिस H विल फॉर्म H2SO4। ठीक है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। The next method of preparation of alcohol is by hydroboration oxidation reaction. तो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो हम डायबोरेन के प्रेजेंस में करते हैं। डायबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। ठीक है, B2H6 का स्ट्रक्चर किस तरह से है, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इसकी वैलेंस जो है वो बोरोन की वैलेंसी होती है 3। ठीक है, तो इस केस में ये B2H6 जो है वो C2H6 के जैसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये है एक प्रकार का बनाना बॉन्ड।
यहाँ पर भले ही आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअली में 2 नहीं होती, क्योंकि एट अ टाइम वो दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जिस टाइम पर ये बॉन्ड कंप्लीट होता है तो ये वाला बॉन्ड वीक रहेगा, इस डॉटेड बॉन्ड में दिखा दो इसको, और अगर ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये वाला बॉन्ड वीक रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो एट अ टाइम में एक ही बॉन्ड प्रिपेयर करता है। इस टाइप के बॉन्ड को, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये, और इसको हम बोलेंगे बनाना बॉन्ड। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3। यहाँ पर भले आपको 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लेकिन वो 4 वैलेंसी नहीं, क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये वाला नहीं करता, और अगर ये वाला एग्जिस्ट करता है तो ये वाला नहीं करता। तो ये जो बॉन्ड्स है वो इंटरकन्वर्टिबल है, एंड देयरफॉर देयर आर 3 एटम्स बट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर हम डायबोरिन का स्टडी करेंगे। हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में अल्किन में डायबोरिन ऐड करना है, तो आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ट्राई अल्किल बोरेन। और सेकंड स्टेप में आपको मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन करना है बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम अल्किन को ट्रीट करेंगे B2H6 दैट इज डायबोरिन के साथ। तो हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेगा ट्राई अल्किल बोरेन। उस ट्राई अल्किल बोरेन का जब सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वी विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। इस स्टेप में भी हम हाइड्रेशन ही करने वाले हैं, जैसे पिछले स्टेप में हमने किया था, पिछले एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में किया था, हमने वाटर मॉलिक्यूल को ही ऐड किया था। यहाँ पर भी हम वाटर मॉलिक्यूल को ही ऐड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि एंटी मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करता है। पहले वाले केस में हमने देखा कि वो मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करता है, यहाँ पर वो एंटी मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करेगा। चलो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कीन। ठीक है, जब इस रिएक्शन हम डायबोरिन के साथ करेंगे, दैट इज B2H6 के साथ करेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बोरॉन के ऊपर कंसीडर करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और बोरॉन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हमें मिलेगा एक ट्राई अल्किल बोरेन। अब देखो, इस CH को अगर H मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा R, CH को H मिला तो ये CH2 बन गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 को मिलेगा B, इस CH2 को मिलेगा B। लेकिन हमें पता है कि बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। अभी यहाँ पर कितनी दिख रही है, ओनली 1 वैलेंसी। तो ऐसे 3 ग्रुप उसको लगे रहेंगे, 3 ग्रुप, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी हमको 3 सेटिस्फाई करनी है इसलिए, एंड देयरफॉर इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप 3 टाइम्स, देयरफॉर इट इज ट्राई अल्किल बोरेन। इसको हम बोलेंगे ट्राई अल्किल बोरेन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमको पहले बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में बोरॉन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो हमें करना क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, सपोज ये भी एक कार्बन है, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तो यहाँ पर हमको 18 करना है, यहाँ पर कितने 1 2 3, कितना करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सारे एटम्स बैलेंस है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, राइट में है 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। बोरॉन है लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी बोरॉन है 2, और हाइड्रोजन एटम्स ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुके हैं। तो हमको मिला है ट्राई अल्किल बोरेन फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसी ट्राई अल्किल बोरेन को वापस लिखता हूं, ये हो गया ट्राई अल्किल बोरेन। इसका हमको करना है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस है, इसलिए मैं यहाँ पर OH माइनस लिखता हूँ। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये वाली रिएक्शन आपको करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये पेरोक्साइड जो मॉलिक्यूल बीच में से ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज इसमें होगा, और एक OH पार्ट अल्किल ग्रुप को मिलेगा, तो दूसरा OH पार्ट आपको बोरॉन वाले पार्ट को मिलेगा। सो क्या हो जाएगा, R CH2 CH2, इस पार्ट को भी एक OH मिलेगा इधर वाला, तो क्या हो जाएगा R CH2 CH2 एंड OH, और सेकंड मिलेगा बोरॉन को भी OH वाला पार्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा BOH। लेकिन हमें पता है कि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस OH पार्ट को 3 टाइम्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा BOH बाय 3। अब इसी रिएक्शन को वापस से हम बैलेंस करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए 9, राइट में कितने हैं 1 2 3, ओनली 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में बोरॉन एटम्स कितने हैं, यहाँ पर है 1, राइट हैंड साइड में बोरॉन एटम्स 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 1 and 1 2, राइट हैंड साइड में कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3 एंड दिस 3 कितने हो गए 3 and 3 6 हो गए। हमें क्या करना पड़ेगा फिर इसको 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और ऑलमोस्ट सारे एटम्स अभी बैलेंस हो चुके हैं, तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिला जो कि एक प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल है। इट मीन्स दैट दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ओके, नाउ कंसीडर द रियल एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करी डायबोरेन के साथ, दैट इज P2H6, दैट इज डायबोरेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है, इसलिए इसको THF के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट will go to this carbon atom and negative part will go to this carbon atom. So what happens, we have CH3 CH2 मिलेगा H, तो ये बन जाएगा CH2 और इधर CH2B, इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी है 3, तो ये मिला आपको ट्राइप्रोपिल बोरेन। इस ट्राइप्रोपिल बोरेन का सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2 को लिखता हूं मैं HOOH, यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक पार्ट अल्किल ग्रुप को मिलेगा, दूसरा पार्ट आपको बोरॉन को मिलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH/3। ओके, तो ये क्या मिला हमको, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अभी इसी रिएक्शन को बैलेंस करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन कितने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गए, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन दैट इज 6 ऑक्सीजन, हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ, सो इन दिस वे वी कैन गेट अ प्राइमरी अल्कोहल। The above example can be summarized as, एक अल्कीन है, इसमें हमको करना क्या है, बस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, B2H6 की रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज अ सॉल्वेंट, एंड सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में H2O2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज OH-। तो ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद क्या होगा, ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, so it follows एंटी मार्कोनिस रूल। और अगर एंटी मार्कोनिस रूल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, so this OH part will go here and we will get R CH2 CH2OH and we will get a primary alcohol, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिस रूल फॉलो किया जाता था, इसीलिए हमको सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल मिलते थे, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनिस रूल फॉलो किया जाता है, इसलिए हमको जनरली प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So now we will discuss the mechanism for acid catalyzed hydration of alkene to form corresponding alcohol, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है, हमने क्या किया, इसमें अल्कीन लिया, अल्कीन में वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस रूल एंड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसी का रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म में देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ वाटर मींस क्या होगा, हमें पता है कि H2 का फॉर्मूला इस तरह से, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर होती है 2 लोन पेयर्स, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन करना है मींस प्रोटॉन के साथ इसकी रिएक्शन करनी, प्रोटॉन मींस H+ आयन, ठीक है। तो अपने किसी भी एक लोन पेयर का यूज करके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा HOHH, और इसके पास अभी एक ही लोन पेयर बाकी है, पहले 2 थी अभी एक ही बाकी है, तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लोन पेयर,
सो दिस बिकम्स प्रोटोनेटेड वाटर, ओके। और हाइड्रोनियम आयन इसको हम बोलते हैं। सेकंड स्टेप, स्टेप 2 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो क्या होगा, ये अल्किल मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड है दैट इज ओलेफिनिक पार्ट, वो ओलेफिनिक पार्ट इस प्रोटोनेटेड वाटर के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोकटायन देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि ये है वाटर अपना प्रोटोनेटेड, इसमें इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे अल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कीन वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाटर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नलिफाई हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सपोज इस वाले कार्बन ने अटैक किया है तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड वी विल गेट RCH। इस CH ने इस CH को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये बन गया CH2, लेकिन इस CH2 का एक वैलेंसी कम है इसलिए इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो इट बिकम्स अ कार्बोकटायन। दिस इज कार्बोकटायन, ठीक। स्टेप 3, सॉरी यहाँ पर कार्बोकटायन इस वाले कार्बन पे बनेगा, CH3 है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3 दैट इज अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकटायन। सो व्हाट हैपेंस, ये कार्बोकटायन इसको RCH पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है, और इसके ऊपर वाटर का अटैक H2 लिखता हूं इस तरह से, ठीक है। लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगी, लोन पेयर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगी और हमको मिलेगा इस तरह से मॉलिक्यूल RCH, यहाँ पर OHH अटैक हो गया और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और ये CH, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इसको हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे। एंड स्टेप 4 इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है इसको मैं वापस लिखता हूँ RCHOHH, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है CH, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए हाइड्रोजन को लॉस कर देगा और ये पूरा बॉन्ड अपने ऊपर ले लेगा और ये हाइड्रोजन को लॉस करने के बाद बन जाएगा OHCH3 प्लस ये जो हाइड्रोजन लॉस हुआ है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोटॉन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का लॉस हो रहा है इसीलिए इसको हम डीप्रोटोनेशन बोलेंगे। सो फाइनली पहले स्टेप में हमने प्रोटोनेशन किया था, प्रोटोनेशन के टाइम पे हाइड्रोजन को ऐड किया था और लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया, प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इट मीन दैट प्रोटॉन इज जस्ट बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। H+ आयन ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है इसीलिए इसको हम एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फाइनली OH ग्रुप कहां पर आया, सेंट्रल कार्बन के पास जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स थे। सो दिस मैकेनिज्म एक्चुअली फॉलोज मार्कोनिक्स रूल। The next method of preparing alcohol is by reduction of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें पता है। उसमें से सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमें पता है कि कॉमन ट्रेंड है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स एंड अल्डिहाइड्स ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और उसी ट्रेंड को, या ऑक्सीडेशन का अगर ट्रेंड है, अगर हम रिवर्स आते हैं तो वो रिडक्शन का ट्रेंड हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन गिव्स अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। Similarly, secondary alcohols on oxidation gives ketones and ketones on vigorous oxidation gives corresponding carboxylic acids. तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे उसमें कार्बन एटम्स कम रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कीटोन्स का अगर रिडक्शन हो जाता है तो रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा।
अभी जो हम रिडक्शन करने वाले हैं वो अलग अलग वेज से रिडक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं, what is meant by hydrogenation? That is addition of hydrogen molecule that is H2 molecule। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमको हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल लेना पड़ेगा, या फिर हम रैनी निकेल क्या होता है, रैनी निकेल इज फाइनली डिवाइडेड निकेल। निकेल की जगह पे आप प्लैटिनम या फिर पैलेडियम भी ले सकते हैं, लेकिन निकेल जनरली यूज किया जाता है। तो इन केस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वी हैव टू यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल दैट इज रैनी निकेल दैट इज फाइनली डिवाइडेड निकेल। या फिर हमारे पास दूसरा भी वे है दैट इज रिडक्शन बाय यूजिंग सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे भी है जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से सारे के सारे डबल बॉन्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ये एक प्रकार का सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया जाता। इसीलिए अगर हमको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स या फिर ऐसे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो हम इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि नाइसेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड करता है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के केस में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन and catalytic hydrogenation and by using by making use of selective reducing agents like lithium aluminum hydride or sodium borohydride। So now let us consider a general example। अल्डिहाइड्स जिनका जनरल फॉर्मूला है RCHO, CHO में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है। सो अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन यूज प्राइमरी अल्कोहल। आप रिडक्शन के लिए कोई भी एक टेक्निक का यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया मींस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया, जैसे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल और इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने दूसरी वे को फॉलो किया दैट इज सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज किया, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका यूज करने के बाद भी आपको वैसे ही प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस हैव एन एग्जांपल। सपोज वी हैव एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका अगर हमने रिडक्शन किया बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये हाइड्रोजनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करने वाले, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा CH3C, ऊपर जो O था उसको एक हाइड्रोजन मिल गया तो ये ONH बन गया, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन को ऑलरेडी था, दूसरा एक हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो CH3CH2OH, इस OH को हम आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथिल अल्कोहल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप इसी रिएक्शन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हो तो भी आपको सिमिलर इथिल अल्कोहल ही मिलेगा, बिकॉज अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन यूज करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। सो इन केस ऑफ कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला RCOR। इसका भी अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमको करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। रिडक्शन आप कोई भी वैसे कर सकते हो, आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो भी आपको करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। सपोज वी कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एसीटोन दैट इज डायमिथिल कीटोन, ठीक है, दिस इज एसीटोन। तो इसका अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रैनी निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम, व्हाट हैपेंस, वन हाइड्रोजन गोज हियर एंड वन हाइड्रोजन गोज हियर, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड उसमें से ब्रेक हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CHOH CH3, ठीक है, दैट इज प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। एंड इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल।
नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब तक हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन देखा है, इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला है RCOOH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे रिडक्शन होता है, मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया था, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम रिवर्स आते हैं तो वो रिडक्शन का ट्रेंड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन होगा तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, एंड देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन यूज प्राइमरी अल्कोहल। बट इन दिस केस lithium aluminum hydride or another very strong reducing agents are required for the reduction of carboxylic acids into primary alcohol. So यहाँ पर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनका यूज करके ही इनको रिडक्शन करना है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट इज समवॉट एक्सपेंसिव, और हमें ये रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसका कॉस्ट, इस रिडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एक ईस्टर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में उस ईस्टर मॉलिक्यूल का रिडक्शन हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से इजीली कर सकते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, दैट इज ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में करना क्या होता है, RCOOH, ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमको करनी है अल्कोहल के साथ, R-OH, अल्कोहल। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इतना रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल को कंटिन्यूसली रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड इसमें लेना होगा, ताकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है उसको कंटिन्यूसली एलिमिनेट कर सके। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, RCOOR' बन गया ये, और बाय प्रोडक्ट क्या निकला, H2O मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट निकला। अभी जो ये हमको मिला है इसको हम बोलेंगे ईस्टर। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, ठीक है, तो हमको मिला ईस्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, अभी जो इस प्रोसेस में ईस्टर मिला है, उस ईस्टर का हम रिडक्शन कर सकते हैं सिंपली बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो आई एम राइट दिस ईस्टर मॉलिक्यूल, और इसका हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, और रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रायनी निकेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमको यहाँ पर दो बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, सॉरी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए आपको 2 मोल्स ऑफ H2 लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा, और दूसरा बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है तो एक हाइड्रोजन इसको, तो इस तरह से इनको 4 हाइड्रोजन मींस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगने वाले हैं। तो फाइनली व्हाट हैपेंस, इसको 2 हाइड्रोजन मिल रहे तो ये बन जाएगा RCH2, और इसको एक हाइड्रोजन मिला तो ये OH बन जाएगा, तो इट बिकम्स RCH2OH प्लस ये R' इसको भी एक हाइड्रोजन मिलने वाला है तो ये R'OH बन जाएगा बस। सो इन दिस वे वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। तो हमें करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले कन्वर्शन करना है ईस्टर में, और बाद में ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिडक्शन करना है, फाइनली आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड इज by addition of Grignard's reagent. So what is meant by Grignard's reagent? It is alkali magnesium halide. Alkyl magnesium halide is also called as Grignard's reagent. हमें क्या करना है, Grignard's reagent को कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करना है। कार्बोनिल कंपाउंड में आइदर ऑल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन लेंगे हम, सपोज ऑल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे Grignard's reagent के साथ। सपोज वी कंसीडर RMgX, ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो हमको करनी है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा एडर। अब इन दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इन अल्किल ग्रुप एंड मैग्नीशियम अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो
So magnesium is metal, so metal part is always electropositive and the remaining part will be electronegative. So positive part will attract negative center and negative part will attract positive center. So we get an adder. So ये इस तरह से बन जाएगा, ऑक्सीजन को मिलेगा MgX वाला पार्ट और इस कार्बन को मिलेगा R वाला पार्ट। तो ये जो है वो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम एडर बोलेंगे और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस में हमको वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। अगेन हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हाइलाइट वाला पार्ट ब्रेक करेंगे। MgX के ऊपर पहले क्या चार्ज था, MgX के ऊपर पहले चार्ज था पॉजिटिव, तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव पार्ट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव सेंटर एंड पॉजिटिव पार्ट विल अट्रैक्ट नेगेटिव सेंटर। सो वी गेट C सिंगल बॉन्ड R, O को मिलेगा H, तो ये बन गया अपना अल्कोहल, ठीक है। प्लस MgX वाले पार्ट को मिलेगा OH, तो ये एक बाय प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। By using this Grignard's reagent method, we can prepare primary, secondary, and as well as tertiary alcohols. Let us consider an example of formaldehyde. Formaldehyde का फॉर्मूला क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे किसी की, जैसे कि हमने ले लिया CH3MgBr, दैट इज मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। In presence of what? In presence of dry ether. So क्या हो जाएगा, इतना पार्ट रिमेनिंग ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इतना पार्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट पार्शियल नेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव विल गो टू नेगेटिव सेंटर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर वी हैव HCH। O को मिलेगा MgBr वाला पार्ट एंड C को मिलेगा CH3 वाला पार्ट। So this becomes adder, that is addition product, which on further hydrolysis this is positive, this is negative what happens, CH3 CH2OH, it becomes CH3 CH2OH plus MgBrOH as a byproduct. So CH3 CH2OH is an example of primary alcohol. So from formaldehyde and any Grignard's reagent, we can prepare a primary alcohol, that is ethyl alcohol. So अगर हम फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा कोई भी अल्डिहाइड ले लेते हैं तो उससे हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो एनी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, तो हमने यहाँ पर ले लिया है एसिड अल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरा अल्डिहाइड, हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, देन व्हाट हैपेंस, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैग्नीशियम इज मेटल therefore acquires a partial positive charge, this becomes partial negative charge, opposite charges will attract each other and therefore we will get CH3 C, O को मिलेगा MgBr वाला पार्ट, ठीक है, और इस C को मिलेगा CH3 वाला पार्ट। तो ये बन जाता है एडर, एडर ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इन सेकंड स्टेज। व्हाट हैपेंस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा, सो इट बिकम CH3 CHOH CH3 प्लस MgBr OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो मिला है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, दैट इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल। तो हमने अब तक फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के एग्जांपल ले लिए, मींस अल्डिहाइड्स के एग्जांपल्स हमने ले लिए। इसके बाद हम देखेंगे कीटोन्स के एग्जांपल। तो कीटोन में सबसे सिंपल कीटोन है एसीटोन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का नाम है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ठीक है, ये एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ठीक है। सो व्हाट हैपन व्हेन अ कीटोन इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, अगेन सिमिलर वे, this is positive part, this is negative part, this carbon is partial positive having charge and this oxygen will having partial negative charge, so opposite charges will attract each other and we will get CH3, CO will get MgBr part, this CH3 and this carbon will get CH3 part. So what happens, this becomes an adduct which on further acid hydrolysis gives alcohol. Which kind of alcohol it is, ठीक है। तो ये O माइनस है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव वाला पार्ट मिलेगा तो ये OH बन जाएगा, इट बिकम्स CH3, COH, CH3, CH3 प्लस MgBr वाले को OH वाला पार्ट मिलेगा, MgBr को OH वाला पार्ट मिलेगा। सो दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। सो फ्रॉम कीटोन वी गेट टर्शियरी अल्कोहल। So we can summarize the following three things, that when formaldehyde was treated with Grignard's agent, it gives a primary alcohol. When any other aldehyde other than formaldehyde, when treated with Grignard's agent, it gives secondary alcohol. And when ketone is treated with Grignard's agent, it gives tertiary alcohol. So this is all about the preparation of alcohols. आज हमने टोटल 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, उसके ऊपर के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आपको ट्राई करने हैं।